I hope my presentation is visible. Recording has started. Please put your attendance, everyone. Okay. ठीक है, चल. So we should start, I think. So in the previous lecture on Saturday, we have seen importance of space missions or why they are needed, isn't it? So we have covered this paragraph. Now we will see artificial satellite. Now, first of all, we must know the difference between artificial satellite and the natural satellite. Okay, natural satellite is an astronomical object orbiting the Earth or any other planet. The moon is the only natural satellite of Earth. Some other planets in the solar system have more than one natural satellite. Similarly, if a man-made object revolves around Earth or any other planet in a fixed orbit, it is called artificial satellite. Now, natural satellite सबको पता है कि कौन सा होता है, किस तरह का होता है. We have only one natural satellite, that is our moon. Okay, Jupiter is having more than one moons, like around 60 to 80 moons are there to Jupiter. Okay, similarly for Saturn as well. Okay, so there are several number of natural satellites for the bigger planets like Jupiter and Saturn. Okay, so now what is artificial satellite? Artificial satellite is a man-made object. Okay, it is constructed by man and it is launched by a human being in the space for the special purposes. Okay, so and like natural satellites, artificial satellites also revolve around the Earth in their certain orbit. Okay, the first artificial satellite, that is Sputnik, was sent to space by Soviet Union in 1957. Today, more than 1,000 satellites are orbiting the Earth. The satellites work on solar energy, so solar photovoltaic panels are attached to both sides of these satellites. Like wings, instruments are installed in the satellites to receive and transmit signal from and to the Earth. Okay, now Sputnik was the first satellite sent to space by Soviet Union. Soviet Union is nothing but today is Russia. Okay, and in present scenario, there are more than 1,000 satellites that are present in the other or that are orbiting the Earth. Okay, now how the satellite get the where the satellite get the energy from? They get the energy from, or they work on the solar energy. Okay, they get their energy from sun. Now they have solar panels on both their side like wings. Okay, so for this particular Sputnik, you cannot see those solar panels. Okay, but now modern day satellites, you can see there are two wing type structures around the satellites, and that are nothing but the solar panels. Okay, so they provide the energy for functioning of the satellite. Okay, and instruments that are necessary to perform experiments that are installed inside the satellite, and the instrument work on this energy that is being produced by the uh, wings, or let us say solar panels. Okay, so that's how a satellite works. So the satellite have various other types of instruments, like depending on their functions. One such satellite is shown in figure 10.1. Signals transmitted from the Earth to the satellite and from the satellite to mobile tower and mobile phone are also shown. These satellites are sent into the space to perform various functions. Depending on their functions, satellite are classified into the following categories. Okay, so there can be several categories of satellites. Okay, depending upon the application of that particular satellite, instrument that has been installed on that satellite may change. मतलब कि हम वो सैटेलाइट किस लिए यूज कर रहे हैं, इसके मुताबिक हम उस पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, बराबर कि नहीं? मतलब जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वही इंस्ट्रूमेंट हम वहां पे
उस सैटेलाइट पे लगाएंगे, जिससे कि उस सैटेलाइट का वेट जो है वो कम से कम रहना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से सैटेलाइट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। नो यहाँ पे कुछ आपको सैटेलाइट्स के लॉन्ग फॉर्म दिए हैं। ओके, सी यूज ऑफ आईसीटी भी बोला है, क्या है, प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शोइंग इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन स्पेस रिसर्च एंड प्रेजेंट इट इन क्लास। ओके, सो आपको क्लास में प्रेजेंट करना है, नहीं करना है, इट इज योर चॉइस। ओके, तो हम एक प्रेजेंटेशन का क्लास यहाँ पे रखेंगे, तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, you have to make one PowerPoint presentation that is showing India's contribution in space research. Okay, so तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा दैट विल बी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है स्पेस रिसर्च में। ओके, सो एवरीवन विल अपलोड योर पीडीएफ। देखिए, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, उसका पीडीएफ बनाना है, एंड दैट यू हैव टू अपलोड ऑन गूगल क्लासरूम। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, सो इसका प्रेजेंटेशन आप करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन आपको एक प्रेजेंट मतलब आपको क्लास में प्रेजेंट करना है नहीं करना है इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन आपको बनाना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, नाउ सी सम long forms of satellites. See, INSAT, INSAT, that is Indian National Satellite. Okay, INSAT का लॉन्ग फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। GSAT का होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। IRNSS का होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRS का होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। GSLV का होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, सो इन सब चीजों के बारे में, GSLV और PSLV के बारे में हम थोड़ा सा डीप में आगे जाके इस चैप्टर में जानेंगे कि ये GSLV और PSLV क्या होते हैं। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3, PSLV, लेकिन ये एग्जैक्टली होते क्या है ये हम देखेंगे। नो, अभी ये जो हमने सैटेलाइट के नाम पढ़े हैं, ये सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट किस काम के लिए यूज होता है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर वेदर सैटेलाइट कौन से हैं, इनसैट एंड जीसैट। इनसैट मीन्स इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ओके, एंड जीसैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसका लॉन्च व्हीकल जो रहता है या फिर लॉन्चर जो रहता है दैट इज GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस सैटेलाइट का फंक्शन क्या है, स्टडी एंड प्रोडिक्शन ऑफ वेदर। अभी हमें हमें बताया जाता है ना कि अगर कोई स्टॉर्म आ रहा है या फिर बारिश होने वाली है, टेम्परेचर कितना रहने वाला है हमारे एरिया में, सो ये सारी जो जानकारी है हमें मिलती है बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट्स। ओके, ये सैटेलाइट्स हमारे एरिया पे नजर रखते हैं, या फिर यहाँ पे जो क्वांटिटीज है लाइक टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, विंड स्पीड, ये सब कैलकुलेट करते हैं, and that's why they predict the weather conditions. Okay, now communication satellites, INSAT and GSAT, these kind of satellites can be used for communication as well. Okay, again the launch vehicle is GSLV or launcher is GSLV. So communication satellites are used for establishing communication between different location in the world through use of specific waves. Okay, उन स्पेसिफिक वेव्स का नाम रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कम्युनिकेशन के लिए किस तरह से यूज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था कि आपका मोबाइल फोन, जिस तरह से मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, यू आर सिटिंग एट डिस्टेंट प्लेस, इजंट इट। सो यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ, यहाँ से कुछ जो मेरे जो वॉइस सिग्नल है वो एक वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड दैट वेव फॉर्म इज गोइंग टू द tower nearest to me. Okay, and after that it is going to satellite. Again, from the satellite it is coming to the station near you, and from that station it is coming to your mobile, laptop, whatever it is. Okay, so this is how the communication happens. Now broadcast satellite, telecasting of टेलीविजन प्रोग्राम्स। सो इनसैट एंड जीसैट जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी यूज होते हैं। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट इज वन वे कम्युनिकेशन। लाइक सी, ब्रॉडकास्ट में यानी कि हमें टीवी पे जो प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, आप अगर कोई लेक्चर देख रहे हो फॉर एग्जांपल ऑन द टीवी, so you cannot ask a question to that teacher. Why you cannot ask? Because you cannot communicate with that teacher. Okay, so that is, the teacher is just teaching you and that's it. आपको सिर्फ सुनना है, that means communication is one way. वो सिर्फ वो टीचर आपसे बात कर रहा है, you cannot talk to them. Okay, so that is
ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि वो जो प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, एंड ब्रॉडकास्ट इन द मासेस मतलब कि ब्रॉडकास्ट जो है वो मासेस में होता है, बहुत ज्यादा संख्या में होता है। आपके घर में जो कुछ भी फेवरेट आपकी सीरियल हो या फिर मूवी हो या फिर मैच, लेटेस्ट से मैच है आईपीएल का या फिर क्रिकेट का मैच है, कोई भी फुटबॉल वॉलीबॉल आपको जो भी इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, सो वो जो मैच टेलीकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन द ईच एंड एवरी होम। ओके, मतलब कि हर एक घर में वही मैच टेलीकास्ट होगा। ओके, so this is broadcasting, that is the difference between communication and broadcasting. Now navigation satellites fix the location of any place on the earth's surface in terms of its various precise latitude and longitude. IRNSS is the satellite which is navigational satellite. Okay, so navigation का यानी navigation satellite का यूज यानी कि क्या कि आपको टाइटैनिक मूवी पता होगा, बराबर? हैव यू सीन द टाइटैनिक मूवी? उसमें क्या होता है कि वो जो नाव रहती है that collides with the iceberg and it sinks, is it? वो डूब जाती है नाव। सो ये नेविगेशनल सैटेलाइट जो होते हैं दे आर नाउ कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द प्रॉपर रूट, मतलब कि अगर आज की अगर हम बात करें, सो इट इज इम्पॉसिबल कि इस तरह की कोई घटना घटे। ओके, मतलब जो टाइटैनिक की घटना घटी थी उस तरह की घटना नहीं घट सकती बिकॉज ऑफ नेविगेशन। वी नो दैट व्हाट इज इन आवर पाथ, कि हमारे पाथ में है क्या। सो दैट इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेविगेशनल सैटेलाइट्स। सिमिलरली मिलिट्री सैटेलाइट्स का क्या काम होता है कि दे कीप वॉच ऑन आवर टेरिटरी और रीजन, कि यहाँ पे कोई एंट्रेडर्स का कोई मिसाइल या फिर कोई जेट नहीं आ रहा है। ओके, सो दे कीप वॉच ऑफ दैट, and if they see something like that they alert our military forces. Now collecting information about the security aspects, जैसे कि मैंने आपको बताया। now earth observation satellites, so IRS, okay, so this is the satellite that is used for the earth observation, study of forest, deserts, oceans, polar ice on the earth's surface, exploration and management of natural resources, observation and guidance in case of natural calamities like flood or earthquake। okay, सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स यानी कि इन सैटेलाइट्स का काम होता है अर्थ पे, अर्थ का जो एरिया है उस पर नजर रखना कि कहाँ पे कौन सी मूवमेंट हो रही है। ओके, सो इट मे बी ऑन डेजर्ट्स लाइक फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या चल रहा है एग्जैक्टली exactly, वो देखने के लिए सिर्फ दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग। ओके, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कैलेमिटीज और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट मे अकर इन फ्यूचर। सो दिस इज द यूज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है पीएसएलवी से, लॉन्चर व्हीकल इज पीएसएलवी। ओके, सो वी हैव गिवन टू लिंक्स हियर। ओके, सो फर्स्ट लिंक जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, सो इसको आप बाद में देख लीजिए। जो सेकेंड लिंक है वो मैं आपको दिखा दूंगा, इसका आपको ऑडियो नहीं सुनाई देगा। ओके, इसका आपको ऑडियो नहीं सुनाई देगा, लेकिन जो कुछ भी आप पिक्चर में देखेंगे दैट इज सफिशिएंट आई थिंक। ओके, नाउ लेट मी जस्ट प्रेजेंट यू द वीडियो। सॉरी, the video will be visible to you in few seconds. 1975 was a great day in the Indian history as country's first satellite Aryabhat was launched into space. The satellite name was given after Aryabhat, who was a famous Indian astronomer, mathematician in the 5th century. It was assembled at Peenya near Bangalore by Indian Space Research Organization but was launched from within the Soviet Union using a Cosmos 3M launch vehicle. Aryabhat weighed 360 kilograms. It was instrumented to perform experiments in X-ray, astronomy, agronomics and solar physics. A power failure halted tests after 4 days in orbit, with all signals from the spacecraft losing following the 5 days of operation. However, during its operation, it collected crucial information. After Aryabhat, Bhaskar 1 and 2 satellites with low orbit Earth observation were developed. Today, India has made tremendous progress to reach the level of GSAT spacecraft launched through GSLV carrier. Bureau Report, DD News. Okay, so that was the video from this link. Okay, so जो फर्स्ट लिंक है उसका वीडियो आप लोग देख लीजिए। इसमें हमें क्या दिखाया गया है? इसमें हमें दिखाया गया है our first India's first satellite, that is आर्यभट्टा।
Okay. So Aryabhatta is India's first satellite, and it was launched in, I think, 1975, near around 1975. Okay. So Aryabhatta को जो लॉन्च किया गया था, that was launched in a Russian spacecraft, I think. Okay, so Indian spacecraft में से लॉन्च नहीं किया गया था, तब हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं था. सी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो रहता है, जिसे कि हम रॉकेट कहते हैं, that was not available at that time with India. So it was launched in a Russian spacecraft or a Russian rocket, and uh, इट ओनली वर्क फॉर 4 days. ओके, सो पावर फेलियर की वजह से कुछ तो प्रॉब्लम हुआ उस सैटेलाइट में, आर्यभट्टा में, एंड 4 दिनों के बाद में वो फंक्शन करना बंद हो गया. उसके बाद में सेकेंड सैटेलाइट जो है, दैट इज भास्कर 1, वाज सेंट टू द स्पेस इन 1979. Okay, so this is the first satellite, Aryabhatta. You have seen the image of Aryabhatta. Okay, now ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. तो ये जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड अर्थ, इनकी ऑर्बिट्स किस तरह से डिसाइड की जाती है. ओके, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स do not revolve in similar orbits around the earth. The function of the satellites decides the height of the satellite's orbit from the earth's surface, the nature of the orbit, circular or elliptical, and whether the orbit shall be parallel to equator or making some angle with it. To put the satellite in its proper orbit at specific height above the earth's surface, the satellite is taken to that height using satellite launcher. Then the satellite is given a specific velocity known as critical velocity, VC, in a tangential direction of the orbit. The satellite then starts revolving around the earth. The formula for velocity VC can be derived as below. So देखिए कि पहले तो सैटेलाइट की ऑर्बिट क्या होती है. ओके, सो इफ यू एवर वंडर्ड कि फॉर एग्जांपल लेट अस से नाउ दिस इज आवर अर्थ. ओके, सो दिस इज अर्थ, और इस अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग. ओके, सो वन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस इज वन सैटेलाइट. ओके, so if I launch a second satellite and it goes in this direction, okay, maybe this happen that someday these two satellite collide with each other. Okay, so that may happen, that is the possibility. ऐसा किसी के मन में ख्याल आता है कि इतने सारे सैटेलाइट्स इतने सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के लेट अस से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, बट दे नेवर कोलाइड विथ ईच अदर. ओके, सो व्हाई डू दे डू नॉट कोलाइड विथ ईच अदर? बिकॉज ये सारे सैटेलाइट्स, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव एन वन ऑर्बिट. ओके, इन सारे सैटेलाइट्स की एक ही ऑर्बिट हो ये जरूरी नहीं है. हर एक सैटेलाइट की डिफरेंट ऑर्बिट हो सकती है. इंडीड उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में ही लॉन्च किया जाता है. ओके, सो उनको अलग अलग ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाता है जिससे कि वो कोलाइड ना हो और दे विल वर्क प्रॉपरली. ओके, सो इसको किस तरह से उसे सैटेलाइट को ऑर्बिट किस तरह से दी जाती है, दैट इज द मेन क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट जॉब इज टू टेक द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. नॉट एक्चुअली अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड बट आउट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ओके, सो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर उसे ले जाना है. एंड जहां पे जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे लॉन्च किया जाता है. लॉन्च करने के बाद में एक सर्टन हाइट पे उस सैटेलाइट को ले जाया जाता है और उसके बाद में उसे एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड दी जाती है so that the satellite starts revolving around the earth or it gets a velocity. okay, तो ये सैटेलाइट जो है वो एक वेलोसिटी प्राप्त करता है. सो at the end of this class, okay, so देखिए at the end of not this class, at the end of this चैप्टर, इस चैप्टर के बाद में मैं एक आपको ऐसा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और एक मैं आपको एग्जैक्टली एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा भी कि इसमें किस तरह से सैटेलाइट को या फिर हमारा जो लॉन्च व्हीकल रहता है उसे स्पेस में भेजा जाता है और किस तरह से उसकी ऑर्बिट बनाई जाती है. ओके, सो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर
मैं आपको मोबाइल पे ये डेमो करके दिखा दूंगा। इसके लिए एक एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि अभी आप लोग ना इंस्टॉल करें तो बेहतर है, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो आई विल गिव यू वन डेमो फॉर दैट कि किस तरह से इसे लॉन्च किया जाता है और किस तरह से वो हम उसकी ऑर्बिट सेट करते हैं। सो आप फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए कि पहले तो एक सर्टन हाइट पे उसे अर्थ से भेजा जाएगा, दिस हाइट, और इस हाइट पे जाने के बाद में टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जाएगी या फिर उसे फायर कर दिया जाएगा, थर्स्ट दे दिया जाएगा, सो दैट इट विल गेट वन ऑर्बिट एंड इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग ऑर्बिट इन दैट ऑर्बिट. If a satellite of mass m is revolving around the earth in an orbit of height h with the speed vc, then as seen in the chapter on gravitation, the centripetal force mvc square by r will act on it. Okay, now centripetal force is central seeking force, isn't it? So that satellite will try to come towards center, but because of the tangential velocity it will revolve around the अर्थ. ओके, सो वी हैव सीन दैट इन द फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने देखा. इसके लिए फॉर्मूला भी हमारे पास दिया था एम वी सी स्क्वायर बाय आर. नाउ आर इज व्हाट? आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और लेट अस से हाइट ऑफ दैट particular satellite from center of the earth. Here r is the orbital radius of the satellite from the center of the earth. ठीक है, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, m is the mass of that satellite, याद रखिए. Now this centripetal force is provided by gravity of earth. So जो कुछ भी satellites around the earth revolve करते हैं, they all satellites are revolving around the earth because of gravitation of earth. ग्रेविटी जो है अर्थ की, उसी की वजह से वो सारे रिवॉल्व कर पाते हैं. समझ रहे हो? Earth is revolving around the sun because of gravitation, that is a high amount of gravitation present in, or high amount of gravity that is attracting earth towards the sun. अर्थ जो है वो सन के इन्फ्लुएंस में है और मून जो है वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में है. सिमिलरली कई सारे सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किए हैं, दे आर इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ. जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं फॉर मून, सो दो सैटेलाइट आर क्लोजर टू मून देन द अर्थ, दैट्स व्हाई दे रिवॉल्व अराउंड द मून इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटी. समझ रहे हो? इस तरह से मतलब जिस सेलेस्टियल बॉडी की क्लोज कोई भी सैटेलाइट होगा, उस सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशन की वजह से उस बॉडी के अराउंड वो सैटेलाइट रिवॉल्व होगा. सिमिलरली फॉर मार्स ऑर्बिटर मिशन. ओके, आपने मिशन मंगल मूवी देखा होगा जिसमें कि हम मार्स के लिए एक ऑर्बिटर भेजते हैं. सो वो जो स्पेसक्राफ्ट हमने भेजा है या फिर जो सैटेलाइट हमने भेजा है, ऑर्बिटर हमने भेजा है, दैट सैटेलाइट इज near to Mars than the Earth. That's why it is orbiting Mars. Okay, so इस तरह से satellites orbit करते हैं. Now therefore centripetal force is equals to gravitational force between the Earth and the satellite. So जितना centripetal force apply हो रहा है उस satellite पे because of Earth, उतना ही gravitational force जो है वो उन दो बॉडीज के बीच में रहेगा, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में रहेगा. हमने सीखा है कि कोई भी दो बॉडीज जिनका कि कोई पर्टिकुलर मास है, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स, सर्टेन फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. नाउ आर स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे r प्लस एच स्क्वायर लिखा है. क्यों लिखा है? देखिए, so mvc square by r plus h. Now this r is the radius of earth, r is the radius of earth, and h is the distance of that satellite from the surface of earth. See, if this is the earth, this is the position of satellite, so this is r. Okay, this is r and this is h, height of the satellite and the radius of the earth. Okay, so that's why instead of divide by r square, we have r plus h square in this formula. So after doing some calculations, see, this m and this m gets cancelled. Okay, r plus h यहाँ पे है, r plus h square यहाँ पे है, so एक r plus h square कटेगा. So gm divided by r plus h is equals to vc square बचेगा. See, vc square is equals to gm divided by r plus h. Now vc is equals to
अगर हम दोनों साइड में उसका स्क्वायर रूट ले ले तो हमें VC स्क्वायर का मिल जाएगा VC, एंड GM बाय R प्लस H का मिल जाएगा अंडर रूट GM बाय R प्लस H. So write down this formula. This formula is for velocity, tangential velocity of satellite. Okay, or let us say critical velocity of satellite. Critical velocity of satellite. Write down the formula. VC is equals to root of GM divided by R plus H, where G is the gravitational constant. We all know that that is 6.67 multiplied by 10 raised to the power minus 11 Newton meter square plus kg divided by K, sorry, Newton meter square plus meter square per kg square. Mass of Earth is M, that is 6 into 10 raised to the power 24 kg. R is the capital R is the radius of Earth, that is 6.4 multiplied by 10 raised to the power 6 meters, or 6,400 kilometers. Height H is the height of satellite above the surface of Earth. We all know all these things. Okay, so I hope you have written the formula. Have you written the formula, everyone? Have you written the formula? बताइए. ओके तन्वी, ठीक है. ओके, सो नाउ everyone is responding. That is good. ठीक है. So everyone please keep responding. Huh? So that's why I will know that everybody is listening to me. Now it can be seen that the critical velocity does not depend on the mass of the satellite, as the height of the satellite's orbit from the Earth's surface increases, the critical velocity decreases. Depending on the height of the satellites orbit above the Earth's surface, the satellites orbit are classified below. So जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वो जो स्पीड है, मतलब जिस स्पीड से सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होगा, वो स्पीड उसके मास पे डिपेंड नहीं करते हैं. भले ही आप 1 किलो का सैटेलाइट भेजिए स्पेस में, या फिर 100 किलो का भेजिए, या फिर आप 500 केजी का भेजिए, या फिर आप 500 टन का भेजिए. ओके, इतना बड़ा सैटेलाइट भेजना अभी फिलहाल तो मुश्किल है, 500 टन का सैटेलाइट भेजना. लेकिन उसकी स्पीड उसके वजन पे डिपेंड नहीं है. समझ रहे हो? सो किस चीज पे डिपेंड है? द स्पीड ऑफ दैट सैटेलाइट इज सोली डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. मतलब अर्थ के सरफेस से जो हाइट है उस सैटेलाइट की, उस पे बेस्ड जो है उसकी स्पीड रहेगी. नाउ मुझे बताइए, मून की स्पीड क्या है? टेल मी द स्पीड ऑफ मून. मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए कितने दिन लगते हैं? नोबडी नोज. किसी को नहीं पता है? हाउ मेनी? ओके, भैरवी सिंह नो. हाउ मेनी डेज moon takes to revolve around the earth? It is 7. ओके, बाकी लोग ट्राई कीजिए. No, it is not 15. It takes approximately 27 days. 28 दिन लगते हैं. ओके, मून को अर्थ के अराउंड मूव करने के लिए कितने दिन लगते हैं? 28 से लेके 27 से लेके 28 दिन लगते हैं. बराबर. सो दैट्स वाई 15 दिन के बाद अमावस्या आती है और 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है. ठीक है. सो डिस्टेंस कितना है मून का अर्थ से? एनीवन नोज? नोबडी नोज. ओके, सो अराउंड
4 लाख किलोमीटर्स, ओके 4 लाख किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो 4 लाख किलोमीटर पे एक बॉडी है दैट इज मून, उसको 28 दिन लगते हैं। ओके तो मान लीजिए कि एक बॉडी है अराउंड द अर्थ दैट इज 6 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन, सॉरी अर्थ, 6 लाख किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। सो उसको 28 दिन से कम लगेंगे या फिर ज्यादा लगेंगे? ज्यादा लगेंगे, समझ रहे हो? मतलब जितनी हाइट कम, जितनी हाइट कम उतना कम समय लगेगा, उतनी स्पीड ज्यादा। स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, ओके और स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो? सो सी what is my point here, the critical velocity, see as the height of the satellites orbit from the earth surface increases, मतलब सैटेलाइट की हर जैसे जैसे सैटेलाइट की हाइट जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगी वैसे वैसे उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और उसको रिवॉल्व करने को जो टाइम लगेगा वो टाइम बढ़ेगा। ओके सो जैसे कि अगर नजदीक है सैटेलाइट अर्थ के तो वो ज्यादा स्पीड से भागेगा और ज्यादा फास्ट रिवॉल्व करेगा। नाउ वी कैन टेक एग्जांपल, सी मैंने आपको बताया कि मून जो है वो 4 लाख किलोमीटर दूर है अप्रोक्सीमेटली, उसको 28 दिन लगते हैं। किसी ने आईएसएस के बारे में सुना है? आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में सुना है? हैड एनीवन हर्ड अबाउट आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? नहीं? ओके आप लोगों ने सिर्फ सुना है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अर्थ का चक्कर 1.5 आवर में लगा देता है। मतलब 45 डेज 45 मिनट्स का जो है आईएसएस पे डे रहता है और 45 मिनट की नाइट रहती है, समझ रहे हो? मतलब आफ्टर एवरी 45 मिनट्स देयर विल बी sunrise, and after 45 minutes there will be sunset if you are on a ISS International Space Station. Okay, so why? Because the distance of ISS from Earth is very less as compared to Moon. Moon का जो डिस्टेंस है उससे बहुत कम डिस्टेंस पे ISS रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, दैट्स व्हाई इट्स स्पीड इज सो हाई। ठीक है, तो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने में उसको कितना देर देर लगता है? 1.5 आवर ओनली, मतलब कि 90 मिनट्स लगते हैं अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने के लिए आईएसएस को। ना वो हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, मतलब जिस ऑर्बिट में हम उस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। ऑर्बिट यानी कि क्या? ऑर्बिट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके सो हाई अर्थ ऑर्बिट्स, height from the surface earth surface that is greater than 35,780 किलोमीटर्स। मतलब अगर कोई सैटेलाइट लेटेस्ट से 38,000 किलोमीटर की हाइट पे है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो सैटेलाइट है दैट इज इन हाई अर्थ ऑर्बिट। ओके वो किस किस अर्थ ऑर्बिट में है? हाई अर्थ ऑर्बिट में है। नाउ व्हाट इज why it does matters? Because of its speed. Now let us see high earth orbit के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। If the height of the satellite's orbit above the earth surface is greater than or equal to 35,780 kilometers, the orbit is called high earth orbit. As we will see in the next solved example, a satellite revolving in an orbit of 35,700 kilometers above the earth's surface will take around 24 hours to complete one revolution. We know that the earth also take almost 24 hours for one revolution. ठीक है, सो अगर कोई सैटेलाइट जो है वो इस हाइट पे है 35,780 किलोमीटर पे है फ्रॉम अर्थ सरफेस, सो उसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स का टाइम लगेगा। ठीक है, 24 आवर्स का टाइम लगेगा। और हमें जैसे कि पता है अर्थ को खुद का चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स ही टाइम लगता है। ओके सो इससे एडवांटेज क्या है देखो, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड इन एन ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटर, द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन फॉर द earth around itself and that for the satellite to revolve around the earth being same, the satellite will appear to be stationary with respect to earth.
सो हाई अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि 36,000 किलोमीटर की हाइट पे अगर कोई सैटेलाइट रहता है, सो दैट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और या फिर वो एक चक्कर अर्थ के अराउंड कितने टाइम में लगाएगा, 24 आवर्स में लगाएगा। सो इससे क्या होगा, देखो अगर वो सैटेलाइट पैरेलल टू इक्वेटर है ना, आपको इक्वेटर पता होगा, देखिए मैं यहाँ पे एक अर्थ का स्पेयर ड्रॉ कर रहा हूँ और ऐसे बीच में एक इक्वेटर रहता है, ठीक है। सो अगर वो सैटेलाइट इस इक्वेटर के पैरेलल है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या रहेगी, देखो कि मान लीजिए वो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है इंडिया से, ओके, इफ द सैटेलाइट इज बीइंग लॉन्च फ्रॉम इंडिया एंड इट इज अबव द स्काईज इन इंडिया, मतलब कि इंडिया का जो आसमान है उसी में वो रहेगा, ठीक है, वहां पे हमने उसकी ऑर्बिट सेट कर दी, और उसकी जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर से। सो क्या होगा, जैसे जैसे हमारा इंडिया अर्थ के साथ साथ घूम रहा है, अर्थ जैसे जैसे घूम रही है, विद द सिमिलर स्पीड दैट सैटेलाइट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग, ओके। सो क्या होगा कि वो जो सैटेलाइट है वो हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगा, समझ रहे हैं, मतलब उसकी स्पीड और अर्थ की स्पीड सेम है, इसलिए वो हमेशा सैटेलाइट अर्थ के ऊपर, सॉरी इंडिया के ऊपर ही रहेगा, और हमें ऐसा लगेगा कि वो जो सैटेलाइट है वो मूव कर ही नहीं रहा है, दैट इज स्टेशनरी सैटेलाइट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हैं, ओके, सो यू आर स्टेइंग हियर एंड अ कार इज गोइंग लाइक दिस, अगर यहाँ पे कार इस तरह से जा रही है इन दैट डायरेक्शन, सो आपको पता है कि वो जो कार है, वो कार इट इज मूविंग, ओके, इट इज मूविंग, इसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि वो कार मूव कर रही है। बट इफ यू आर इन अनदर कार, सी if you are in another car, like see, this is your car, you are going in this direction, and this is other car that is going in this direction, okay. So both the cars are moving with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपको क्या लगेगा कि वो जो साइड की कार है दैट इज नॉट मूविंग, ओके, दैट इज स्टेशनरी, मतलब कि वो हिल ही नहीं रही है, बराबर। जैसे कि आपने कभी ट्रेन के बारे में ऑब्जर्व किया होगा, ट्रेन ट्रेन में जब आप बैठते हैं, तो अगर कोई पैरेलल में ट्रेन जा रही है तो हमें लगता है कि वो ट्रेन मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो सिमिलरली हमें ऐसा लगेगा कि वो जो सैटेलाइट है वो मूव ही नहीं कर रहा है, दैट इज ऑन अ सिंगल प्लेस ओनली, बट एक्चुअली इट इज having something speed, or it is having some particular speed and which is equal to the speed of earth, revolution of earth, and that's why it seems to be stationary. The satellite will, see I'm reading here, the satellite will appear to be stationary with respect to the earth. For a passenger in one vehicle, another vehicle moving parallel to him with equal velocity appears to be stationary, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। This is what happens here also. These satellites are therefore called geosynchronous satellites. Now why geosynchronous? Because they are synchronized with geo. Geo is what? Geo is our earth, okay. Geo is not the SIM card that we use for internet purpose, okay. This is GEO, okay. Geo is our earth, and they are in sync with the earth, that's why they are called geosynchronous satellites. Since these satellites are stationary with reference to the earth, they can observe a specific portion of the earth continuously, therefore they are used in applications like meteorology and for carrying signals for telephone, television, signal etc. So इसका एडवांटेज क्या है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का एडवांटेज ये है कि ये अर्थ से देखने के बाद में स्टेशनरी दिखाई देते हैं, और दे कैन बी यूज टू ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द अर्थ। मान लीजिए कि हमारा अगर कोई एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री मिशन चल रहा है, ओके, और हमें उस मिलिट्री एरिया पे कंटिन्यूसली नजर रखनी है। सो व्हाट वी नीड अ स्टेबल सैटेलाइट। हमें एक स्टेबल सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी कि जो हमेशा उस एरिया पे नजर रख सके। अगर स्पीड में डिफरेंस है, मतलब अर्थ की स्पीड कुछ अलग है और उस सैटेलाइट की स्पीड कुछ अलग है, सो इट विल बी क्वाइट लेट अस से टेडियस जॉब फॉर द सैटेलाइट टू कीप आई ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप दोनों एक कार में, मतलब आप एक इस कार में जा रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है दैट इज गोइंग इन दिस कार, ठीक है। सो आपको, मतलब सी योर ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार, this car is driven by your driver and this car is driven by your friend. तो आपका ये फ्रेंड कार चला रहा है, इस कार में आप बैठे हैं और आपका ड्राइवर ये कार चला रहा है।
सो इफ यू वांट टू कीप आई ऑन योर फ्रेंड, मतलब कि आपको देखते रहना है कि आपका फ्रेंड अच्छे से गाड़ी चला रहा है या फिर नहीं, मतलब कि आपको उसके साथ में ही रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आप पीछे रह जाएंगे सो यू विल नॉट बी एबल टू सी योर फ्रेंड, ओके। अगर आप आगे चले जाएंगे तो आपकी और आपके फ्रेंड की नजर चुक जाएगी, बराबर। सो यू हैव टू बी विथ योर फ्रेंड ऑल द टाइम टू कीप आई ऑन हिम। सिमिलरली geosynchronous satellites can be used like this, okay, so they revolve with the earth and they can keep watch on a certain area, ठीक है। सो अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट के बारे में आप एक बार सर्च कीजिए यूट्यूब पे, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड द जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, ओके, इज इट ओके? बताइए एवरीवन, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट समझ में आया या फिर सर के ऊपर से चला गया? ओके, तन्वी को समझ में आया, वेरी गुड। Why only Tanvi is replying? Nobody else is replying from last 4 5 minutes. Everyone should be replying. Tanvi and Bhairavi. Only these two students are replying. Deep, you have not given a single reply. Aparna Parab. Okay, I don't know your name, sorry. Parab. Then Atharva, Om, Shaheen. What about you guys? Why you are not replying? I think you are not with your mobile phone right now. Okay, you're concentrating on something else. Deep, are you there? Deep, Atharva, Om, Shaheen. Okay, Atharva is here. What about others? Okay, I should complain their name to sir. Okay, so they are not replying, so I need to complain. I am not going to waste your time, students who. Okay, so you have a net problem, so you can put that in the chat box so that I will understand that you are having net problem. Okay. Okay, sorry. ठीक है. Sorry, Tanvi and Bhairavi. I'm not going to waste your time. We will continue. बाकी लोगों का जो नाम है मैं सर को बता दूंगा. He will see what to do with them. They are not replying. Okay. They are not replying. That means they are not paying attention on the lecture. Okay. Let it be. Now, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होती है? देखिए, मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है दैट इज हाइट अबव अर्थ सरफेस 2000 किलोमीटर टू 35,780 किलोमीटर। सो 2000 किलोमीटर से लेके 35,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की बीच में अगर कोई सैटेलाइट है तो उसे कहा जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सो अभी इस जो सैटेलाइट की स्पीड रहेगी वो सैटेलाइट की स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी देन द हाई अर्थ ऑर्बिट, बराबर। इसकी अभी हाइट कम है तो स्पीड कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। और इसका रेवोल्यूशन टाइम जो है, रेवोल्यूशन टाइम कैसा रहेगा? रेवोल्यूशन टाइम विल बी लेस देन 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे से भी कम का टाइम इन्हें लगेगा टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट orbit above the earth surface is between 2000 kilometer to 35,880 kilometers, the orbits are called medium earth orbits. The geostationary satellites orbit above the equator. These are therefore not useful in the study of polar regions. For this purpose, elliptical medium earth orbits passing over the polar regions are used. These orbits are called polar orbits. In these orbits, the satellites complete one revolution in 2 to 24 hours. Some of these satellites revolve in circular orbit at a height of 20,200 kilometers above the Earth's surface. Global positioning satellites revolve in such orbit. Okay, so global positioning satellite is what? GPS. GPS यानी कि आपने कभी गूगल मैप्स यूज किया होगा, ठीक है, कि अगर आपको कोई एड्रेस ढूंढना है या फिर कोई पर्टिकुलर शॉप, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन अगर कोई आपको ढूंढना है, सो व्हाट यू डू, यू जस्ट पुट, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पनवेल के पास में रहता हूँ और मुझे पता नहीं है कि पनवेल रेलवे स्टेशन इज वेयर। सो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक आउट माई मोबाइल एंड put into Google Map Panvel railway station. Okay, so what it will do,
it will locate the Panvel railway station and it will show me the path from where I am to the Panvel railway station. मतलब कि मैं जहां पे हूं वहां से वो मैप मुझे पनवेल रेलवे स्टेशन का रास्ता दिखाएगा. नाउ हाउ दैट मोबाइल नोज और हाउ दैट गूगल मैप नोज वेयर एम आई, हाउ इट नोज, कैसे उसको पता है? बिकॉज ऑफ जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट. ओके, इससे क्या होता है कि एक जीपीएस डिवाइस हमारे मोबाइल में सेट रहता है और वो जो सैटेलाइट ऊपर, जीपीएस वाला सैटेलाइट जो है ऊपर, वो क्या करता है? दैट सेंड्स कंटिन्यूसली सिग्नल सेंड करता रहता है. ओके, और जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब वी आर आस्किंग जीपीएस फॉर हेल्प, देन व्हाट, हमारा जो डिवाइस वो एक्टिवेट हो जाएगा, जीपीएस एक्टिवेट हो जाएगा और वो जो जीपीएस है वो सैटेलाइट से जो सिग्नल आ रहा है वो रिफ्लेक्ट कर देगा सैटेलाइट को, मतलब वो कैप्चर करेगा एंड इट विल इमीडिएटली रिफ्लेक्ट दैट सिग्नल. सो इससे क्या होगा कि वो सैटेलाइट, उस सैटेलाइट को पता चल जाएगा कि ये सिग्नल कहां से आ रहा है. ओके, सो दैट द सैटेलाइट विल नो द एग्जैक्टली पोजीशन वेयर वी आर. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन लोकेट द थिंग्स ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ जीपीएस. नाउ यहाँ पे कुछ पोलर रीजन्स या फिर पोलर ऑर्बिट्स बोला है, ये क्या होते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज आवर अर्थ, this is our earth, okay, and this is equator, this is pole, that is north pole, this is south pole. Okay, and if our satellites are revolving like this, इसी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के बाद में वो पोलर पे ध्यान थोड़ी ना रख पाएंगे, अपने अपने जो पोलर पोल्स है उन पोल्स पे वो ध्यान नहीं रख पाएंगे. सो वी कैन मेक द ऑर्बिट लाइक दिस आल्सो. ओके, मेक देम ऑर्बिट लाइक दिस, मतलब वो इस तरह से भी रिवॉल्व कर सकते हैं. वी कैन मेक एनी ऑर्बिट, नॉट नेसेसरी कि वो दैट शुड बी पैरेलल टू आवर इक्वेटर, ऐसा नेसेसरी नहीं है. तो देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको एक मैप दिखाया है जिसमें कि एक HEO दिखाया है, that is higher earth orbit, high earth orbit, medium earth orbit is there, and lower earth orbit is there, LEO, MEO. Okay, so MEO आपको दो टाइप के दिखाए गए हैं. So this orbit is parallel to equator. Okay, this orbit is parallel to equator, and this orbit is for particularly keeping eye on our poles. ठीक है, so ये ऑर्बिट का एडवांटेज क्या है कि ये पोल पे ज्यादा फोकस कर सकती है. नो, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ का? जो सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं, MEO में रहते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन 2 to 24 hours. ओके, सो दिस इज द टाइम ड्यूरेशन. और 20,000 किलोमीटर पे कौन से सैटेलाइट्स रहते हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स रहते हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस. नाउ द लास्ट ऑर्बिट, दैट इज low earth orbits, height above the earth surface 180 kilometer to 2000 kilometers. Okay, now someone will read the paragraph of low earth orbit. Who is going to read? Please put your name. Okay, Tanvi is interested. Tanvi, please. If the height of the satellite orbit above the Earth's surface is in between 180 kilometer and 2000 kilometer, the orbits are called low Earth orbits. The satellites used for scientific experiments and atmospheric studies revolve in low Earth orbits. Depending on the height of their orbits, they complete one revolution in around 90 minutes. International space stations and Hubble telescopes are revolve in low Earth orbits. Figure 10.4 shows various orbits of satellites. Okay, very good. So हमें एक डिस्टेंस पता चल गया कि कौन सा डिस्टेंस रहता है कि 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के अंदर कोई सैटेलाइट है. सो दैट इज that satellite is in a low earth orbit. Okay, so these satellites used for scientific experiments, मतलब कि जो हमारा वेदर रहेगा, ओके, या फिर एटमॉस्फेरिक स्टडीज रहेगी, वो सारी इन सैटेलाइट की मदद से की जाती है. नो, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ देयर ऑर्बिट्स, दे कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन अराउंड 90 मिनट्स. तो जैसे कि मैंने आपको ISS का एग्जांपल बताया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और हबल टेलीस्कोप. सो ये जो दो चीजें हैं, they revolve
इन लो अर्थ ऑर्बिट्स, ठीक है। सो इसकी वजह से इनकी स्पीड ज्यादा होती है एंड दे रिवॉल्व वेरी फास्ट अराउंड द अर्थ, ठीक है। सो नाउ डू यू नो वाला सेक्शन हम थोड़ा सा देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे made a small satellite and sent it to space through ISRO in 2016. The name of the satellite is Swayam and it weighs around 1 kg. It is orbiting the Earth at the height of 515 kilometers. The main objective of the satellite was to provide point-to-point messaging service using a special method. Okay. सो ये जो COEP के स्टूडेंट्स थे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के, इन्होंने एक सैटेलाइट बनाया। उस सैटेलाइट का वजन था 1 kg। उसका नाम था स्वयं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे अगर डालेंगे कि स्वयं सैटेलाइट बाय COEP स्टूडेंट, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इस सैटेलाइट का यूज क्या है? पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल लाइक हम लोग किस तरह से मैसेज करते हैं कि अगर वी आर मैसेजिंग लाइक विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली यूजिंग सर्वर्स ऑफ व्हाट्सएप। ओके, वी आर यूजिंग व्हाट्सएप सर्वर्स, या फिर व्हाट्सएप का जिन सैटेलाइट्स के साथ टाई अप है वो सैटेलाइट हम यूज कर रहे हैं फॉर मैसेजिंग। बट इन स्टूडेंट ने क्या किया कि इनका खुद का सैटेलाइट था, मतलब कि वो खुद के सैटेलाइट की मदद से पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग एक दूसरे को कर सकते थे यूजिंग द स्पेशल मेथड। और इसरो ने इस सैटेलाइट को 2016 में लॉन्च किया। इसकी जो हाइट है वो 515 किलोमीटर से, ठीक है। सो ISS का डिस्टेंस कितना है पता है आप लोगों को? फ्रॉम अर्थ ISS का डिस्टेंस है अराउंड 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ओके, 400 किलोमीटर डिस्टेंस है ऑफ ISS फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नाउ कम टू योर PPT कि आपको PPT में बनाना क्या है, ठीक है। सी, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जल्द जल्द से जल्द बनाना है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। ओके, यू कैन मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज पर योर कन्वीनियंस इन द नवंबर, दिसंबर और इवन इन द जनवरी मंथ। ओके, आपको जनवरी तक टाइम है। जनवरी से पहले आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन सबमिट करना पड़ेगा ऑन आवर टुडेज होमवर्क। आज का होमवर्क में आपको दे दूंगा, ठीक है। सो पावर पॉइंट शोइंग इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन स्पेस रिसर्च, इसमें आपको करना क्या क्या है, व्हाट यू विल डू? तो कुछ नहीं, आप थोड़ा सा इसरो की जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, इसरो को इस्टेब्लिश करने में किन लोगों का योगदान था, ठीक है, इसरो की अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है। सो इस तरह का जो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपका रहेगा, नॉट मोर देन 10 स्लाइड्स। 10 स्लाइड से ज्यादा प्रेजेंटेशन आपका नहीं रहना चाहिए, और प्रेजेंटेशन एकदम छोटा छोटा रहना चाहिए कि important personalities in Indian space program like Dr. Vikram Sarabhai, Dr. Homi Jahangir Bhabha, K. Sivan, like ISRO chairmen, like this. Okay, so you can make as per your convenience, as per your comfort, आपको जिस जैसे अच्छा लगता है। दिस इज फॉर जस्ट योर टाइम पास एक्टिविटी। ओके, इसकी वजह से आपका स्टडी या फिर आपका जो रेगुलर शेड्यूल रहता है वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज करनी है, लाइक मुझे अभी बहुत थोड़ा सा बोर हो रहा है, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, नो व्हाट आई शुड डू, सो यू कैन डू दिस। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई थिंक। सो वंस अगेन लेट मी जस्ट टेक द रिप्लाई फ्रॉम अदर्स। तन्वी एंड भैरवी, आप लोग तो एक्टिव हो यहाँ पे क्लास में, ये मुझे पता चल रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी टेक द रिस्पॉन्स फ्रॉम दीप, अथर्व, ओम, शाहीन। इन लोगों में से जो कुछ कोई भी मुझे सुन रहा है रिप्लाई कीजिए। ओके, ओके, अथर्वाइज लिसनिंग, ठीक है। ओके, अथर्वाइज लिसनिंग, दीप, ओम एंड शाहीन। ओके, यू नाउ यू आर लिसनिंग। सी, मैंने आपको 5 मिनट पहले बोला था, तो आप लोग वहां पे शायद आप लोग क्लास में नहीं थे। ओके, सो दीप, शाहीन, आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है अभी के अभी, नाउ ओनली। ओके, आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में लिखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा इस क्लास में, व्हाट वी हैव लर्न। आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, लाइक कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। हायर अर्थ ऑर्बिट, उसका डिस्टेंस कितना रहता है वो लिखिए। लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसका डिस्टेंस कितना रहता है वो लिखिए। आप लोगों को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। देन आई विल
एंड द क्लास. ओके, सो चैट बॉक्स में आप लिखना शुरू कर दीजिए कि आज के क्लास में हमने क्या सीखा. और जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके मैं स्क्रीन बंद ही कर देता हूं तो आपको क्या ही दिखाई देगा. ठीक है, सो लिखिए. चलिए, दिस इज फॉर This is for Shaheen, Om, and Deep only. Tanvi, Bhairavi, and Atharva. You all please don't write anything. Okay. If you want to write, you can just write and don't send it. Okay. जब मैं बोलूंगा तब send कर दीजिए. चलिए, Deep, Shaheen, and who's the else? Okay, Om. These three people will tell me what we have learned in this lecture. आर्यभट्ट. ओके, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. ठीक है, आर्यभट्टा इज नॉट लॉन्च व्हीकल, इट्स सैटेलाइट, दैट इज फर्स्ट सैटेलाइट. ठीक है, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. शाहीन का एक आंसर तो करेक्ट है. ठीक है, आपको तीन तीन आंसर देने हैं, तीन तीन एटलीस्ट पॉइंट होने चाहिए. दीप, आपका पहला ही पॉइंट गलत है. आर्यभट्टा इज नॉट अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. चलिए जल्दी जल्दी लिखिए. Everyone please write in the chat box. Everyone, not only Deep, Shaheen, and Om. You people were not present in the class. I noticed that. And that's why this is punishment for you. Write it quickly. चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन के आंसर दीजिए. ठीक है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है ना, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. बताइए, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मेरा सैटेलाइट है. ठीक है, और एक सैटेलाइट है 15,000 किलोमीटर की हाइट पे. एक सैटेलाइट है 40,000 किलोमीटर पे हाइट पे, दूसरा सैटेलाइट है 15,000 किलोमीटर की हाइट पे. ठीक है, सो कौन से सैटेलाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी, पहले सैटेलाइट की या फिर दूसरे सैटेलाइट की? सिर्फ इन तीन लोगों के लिए क्वेश्चन है, बाकी लोग आंसर मत दीजिए. ओम ने आंसर दिया सेकेंड सैटेलाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी. ठीक है, बाकी लोग बताइए, शायद गलत है ये. ओके, आई विल रिपीट. ओके, शाहीन ने आंसर दिया पहले सैटेलाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी. एक सैटेलाइट है 40,000 की हाइट पे, दूसरा सैटेलाइट है 15,000 की हाइट पे. पहला सैटेलाइट जो है वो 40,000 की हाइट पे है, दूसरा सैटेलाइट जो है वो 15,000 की हाइट पे है, 15,000 किलोमीटर की हाइट पे. सो कौन से सैटेलाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी? 15,000 वाले सैटेलाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी. ओके, ठीक है, शाहीन ने आंसर दे दिया, रेशमा, ओम ने आंसर दे दिया. हाउ, व्हाट अबाउट यू दीप? आप लेट ज्वाइन हुए दीप, मैंने नोटिस किया. यू ज्वाइन अराउंड 8:10 PM. ओके, so this is not acceptable. Okay, you have to be present in the class on time and you have to be present throughout the class. एक घंटा ही तो आपको मोबाइल के सामने बैठना है पढ़ने के लिए. सो इतना भी आप नहीं बैठ सकते. सो व्हाट आर यू डूइंग? एंड इफ यू हैव नेटवर्क प्रॉब्लम, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, सो यू कैन टेल मी कि सर मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सो टुडे आई माइट नॉट कॉन्सेंट्रेट. ओके, मैं यूट्यूब पे लेक्चर देख के आपका जो अपना जो लेक्चर है वो देख के बाद में पढ़ लूंगा. सो दिस शुड कम फ्रॉम यू ना. you're not you are not coming in the class on time, you're not present in the class. Okay, so you're just putting your name in the chat box that we are present, but you are actually not present. If you are present, then you should give answers. Like, see, if I ask a question, a hard question to let us say the people that were present in the class, बताइए अभी. चलिए, सब लोगों के लिए क्वेश्चन है भैया, फॉर तन्वी, भैरवी, एवरीवन. सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताइए, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? एवरीवन कैन रिस्पॉन्ड. तन्वी, भैरवी, शाहीन, आईएसएस को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? ओके, ओके, ठीक है, बाकी लोग बताइए. देखा इन लोगों ने कितना जल्दी आंसर दे दिया, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द क्लास ना. 90 मिनट्स. ठीक है, हाइट क्या है? आईएसएस की हाइट क्या है?
What is the height of ISS from Earth's surface? बताइए, अगर आप ऑर्बिट भी बता देंगे कि कौन सी ऑर्बिट में है, ये भी चलेगा. हाइट थोड़ा सा, दैट इज स्टैटिस्टिकल डेटा, दैट मे नॉट बी. ओके, सी 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर. सो दैट इज द हाइट. लो, एमईओ नहीं है, लो अर्थ ऑर्बिट है दीप. एमईओ नहीं है, एलईओ है. ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है. यू शुड फोकस ऑन दिस. आपको क्लास में प्रेजेंट रहना पड़ेगा. चलो, सॉरी तन्वी, भैरवी, जो लोगों ने ध्यान दिया लेकिन उनके फिर भी 5 मिनट वेस्ट हो गए फॉर बिकॉज ऑफ मी एंड दीज पीपल. सो दीज पीपल शुड ऑल्सो से सॉरी. ओके, दीप and Deep, Shaheen and Om, all of you say sorry in the chat box to everyone, not to me, everyone, because you have wasted time of everyone. Sorry everyone, you just put like this. Don't say sorry sir. Sorry everyone. Okay, सब लोगों का टाइम खराब हुआ है. चलिए, put that in the chat box and then we will close our today's class. Okay, sorry to everyone. Very good Deep. ठीक है. Yeah, good. Good, very good. ठीक है. सो मेक श्योर कि अगली बार से आपको किसी को सॉरी ना बोलना पड़े, किसी का समय ना खराब हो. जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका क्लास में ध्यान होना चाहिए. अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है, आपका नेटवर्क इशू है, तो आप मुझे बता सकते हैं. जैसे कि अथर्व ने बताया, सर मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है. ओके, सो यू शुड बी प्रेजेंट लाइक दिस. चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय. चलो, बाय बाय, थैंक यू.